Hello everyone and welcome to Karlo Baat. Myself Sujay Dikshit, faculty legal, CLAT Prep. Now as you know, Karlo Baat is our quest to ease the difficult topics for you. So today I am here in front of you again with a new topic. So our today's topic is indemnity and guarantee, right? Most of the time student comes to me and this is the doubt that they always project. That's what is indemnity and guarantee. So here I am. Now let's start. See what actually indemnity is. First of all, we have to understand this particular conceptuality of indemnity. Then only we will be able to differentiate between the concept of indemnity and guarantee, right? So see what happens in indemnity is, first of all, in indemnity we have two parties. Okay, one is the indemnifier and another one is the indemnified. तो देखिए मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल जो वादा करे, देखिए अभी पहले पार्टी समझाना बहुत जरूरी है ना. utmost importance is that first we should understand the parties. The person who promises to indemnify is known as indemnifier, and the person whose favor such promise is made is known as indemnified or indemnity holder. Means that there are two people. First indemnifier and second indemnity holder. Now this thing might be coming into your mind that है क्या ये. तो देखिए अब एक एग्जांपल से पहले मैं आपको समझाता हूँ ये चीज है क्या. Let's say I told you that I am indemnifying you to the amount of 10 lakh rupees for the year 2022. तो मतलब क्या हुआ, देखिए मैं कह रहा हूं मैं आपको 10 लाख रुपए 2022 में पूरे में मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगा. इसका मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप तो हो गए इंडेमनीफाइड, है ना, और मैं कौन हो गया, इंडेमनीफायर. तो इसका मतलब है आप कौन हो गए, आप बन गए इंडेमनिटी होल्डर, और मैं कौन बन गया, मैं बन गया आपका इंडेमनीफायर. तो नाउ इन दिस पर्टिकुलर डील in 2022 there can be any consequence in which you are facing losses. Maybe your contract with someone else which brings the loss, you bring your loss to me, I will indemnify, means I will pay for your loss. Or let's say you and I are doing something in which because of my fault loss happened, I will also indemnify that particular loss. So means here there are two parties and only contract is between I and you, me and you. It doesn't matter कैसे लॉस आया, किसकी वजह से लॉस आया, सामने कौन सी पार्टी थी जिससे तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मेरा उससे लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना सिर्फ तुमसे है. तो ये हमारा आपस का कॉन्ट्रैक्ट है ना. तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इट स्टेट्स व्हाट एक्चुअली इज इंडेमनिटी. सी a contract by which one party promises to save the other from the loss caused by him, जो कि मैंने बताया था मेरे लॉस से, है ना, or by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. Means because of तुम्हारे काम से लॉस आ जाए या तुमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसके किसी एक्ट से लॉस आ गया, तो ये यही बात कह रहा है, किसी भी तरह से लॉस आ जाए इट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. तो यही चीज तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होती है. तो अब अपन इसके एसेंशियल्स देखेंगे दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स और एसेंशियल्स दैट इज रिक्वायर्ड अंडर दिस कॉन्सेप्ट. मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस अकरिंग विल नॉट मेक द इंडेमनिफायर लायबल. मींस लेट्स से इन होल 2022 ईयर नो लॉस इज अकरिंग. यू टोल्ड मी सर सी in 2023 actual loss will reflect, it will come, but currently there is no loss, but I know that apparently no loss is we cannot trace it out currently, but in 2023 definitely loss will come, so please give me 10 lakh rupees in advance. I will not do that. Next point, because what I will, when I will be bound, loss आने दीजिए, actual loss दिखना चाहिए तभी मैं पैसे दूंगा आपको. Next, loss to the indemnity holder is essential, as what I said, होना ही चाहिए. Otherwise, the indemnifier cannot be held accountable or cannot be held liable. Yes. Next point. The loss must arise due to the conduct of the indemnifier or any other person related, as we already, discussed this thing. Next. Let me give you an example. See, insurance contract is one of the example. बिल्कुल.
माई हेल्थ इंश्योरेंस, है ना, माई दिस मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, everything is like that. I always pay the premium. And why I'm paying the premium? Because whenever I'm paying the premium, that particular insurance company is affirming that if any loss occurs in this particular transaction, means हो सकता है ना मेरे द्वारा, मेरी गाड़ी मैं चलाऊं, मैं ही कहीं ठोक दूं, ये हो सकता है। कोई तीसरी पार्टी आके मेरी गाड़ी में ठोक दे, नुकसान तो होना ही है ना, वो उस समय उसके काम से होगा, पहले केस में मेरे काम से हुआ है। अच्छा लेट से, है ना, तो ये जो पर्टिकुलर चीज है इसमें क्या हो रहा है कि लॉस अकर होना ही चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो इंडेमनीफाई कर देंगे मुझको। लेकिन अगर लॉस नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ी कह सकता हूं कि हाँ मुझे ऐसा आभास है, मतलब मुझे ऐसा रीजनेबल, मैं ऐसा सोचता हूं कि 2023 में मे बी प्रोबेबली ऐसा हो जाए कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आप पहले से ही, मेरी अगर 10 लाख तक की पॉलिसी है तो पहले से ही मेरे को 10 लाख रुपए आप दे दो, ऐसा थोड़ी करेंगे। वो कहेंगे लॉस आने दीजिए, दे दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है, हर साल मैं प्रीमियम दे रहा हूं ना, 2021 में दिया, 2022 में भी दूंगा, तो हर साल मैं उनको प्रीमियम दिए जा रहा हूं, तो ये थोड़ी होता है कि वो उस साल तक वो पैसा रिकवर भी हो जाएगा, नहीं होगा। तो इट्स लाइक एन एग्जाम्पल, मींस मैं भी ऐसा कर सकता हूं आपके साथ, इंश्योरेंस कंपनी भी कर सकती है। तो ये खाली एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब एक कॉन्ट्रैक्ट, एक और एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स व्हिच सी मे टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ 200 रुपीज, कि मैं तुमको 200 रुपए तक इंडेमनीफाई कर दूंगा, है ना, सी अगर कुछ भी करता है तो। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। नाउ लेट्स सी व्हाट एक्चुअली इज गारंटी। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इंडेमनिटी इज, अब हम देखेंगे गारंटी क्या होती है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स सी। देखिए, अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। एज वी सी इन इंडेमनिटी देयर आर 2 पार्टीज, नाउ इन गारंटी देयर आर 3 पार्टीज, राइट। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल फर्स्ट। 3 पार्टीज को कैसे समझाएं, देखिए, फर्स्ट पार्टी विल बी, लेट्स से दिस पर्टिकुलरली, so in this particular concept there are 3 parties. So first party in this particular concept will be this principal debtor. Now who is this principal debtor? Let us assume you are principal debtor. तो principal debtor कौन है, जो कि debt लेगा, सही है। and there will be one party, तो first party principal debtor होगी, दूसरी party creditor होगी, there will be one party called creditor, right, and there will be third party which will be surety और गारंटर और गारंटी, ठीक है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है। नाउ सी, प्रिंसिपल डेटर विल टेक क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर, राइट, एंड श्योरिटी will contract with the creditor or will let the creditor know that in case of let's say in case of any default in the payment by principal debtor, कि अगर ये पैसा नहीं चुकाएगा तो मैं आपका वो पैसा चुकाऊंगा, है ना। एग्जाम्पल, लेट्स से आई वांटेड टू ओपन अ चेन with this KFC in Jaipur. So I contacted KFC that I am interested in opening your branch. I am interested in taking a franchisee, right? Now KFC told me that if you want to take our franchisee, you have to furnish 5 lakh rupees bank guarantee. I said okay. अब क्या करना होगा, मैंने अपने बैंक अकाउंट HDFC से संपर्क किया, HDFC बैंक से। मैंने कहा भाई मुझको 5 करोड़ की गारंटी चाहिए। HDFC बैंक ने बोला ठीक है, आप 5 करोड़ की वो दिखा दो, कोलेटरल ले आओ, कुछ भी आप 5 करोड़ की अपनी कोई संपत्ति या सिक्योरिटी जो भी आपको रखवानी है बता दो हमको, हम उस बेस पे आपको 5 करोड़ की गारंटी दे देंगे। They asked me for what purpose you need guarantee. So I told them that I wanted to take franchisee of KFC. So for this particular purpose, I wanted to get a guarantee from you. They said okay. Now what will happen? See, अब KFC को HDFC के थ्रू ये गारंटी मिल गई है कि you go and proceed with the business with this particular person. You go and establish a business with principal debtor. So what KFC will be? Creditor. अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि वो क्रेडिटर कैसे हो गई। देखो KFC क्रेडिटर ऐसे हो गई कि KFC अब फ्री है मुझको 5 करोड़ तक का क्रेडिट देने को। यानी ऐसा थोड़ी होगा कि रोज रोज अगर KFC कुछ मेरे साथ में कुछ मेरे ऊपर कुछ इन्वेस्ट करती है तो KFC मुझसे हाथों हाथ पैसा मांगेगी। सो ये किस तरीके से चलेगा कि भाई KFC को 5 करोड़ की मैंने गारंटी बता दी है तो KFC नाउ इज सेफ एंड साउंड। KFC इज सेइंग ओके, मींस वी कैन इन्वेस्ट 5 crore rupees up to, we can take the risk up to 5 crore rupees with this guy in case he will not repay us, in case there will be some problems, in case some loss will come,
HDFC Bank will step in and pay us 5 crore rupees. We will use that particular guarantee certificate given to us by the HDFC. So this means, let's say now this is only for KFC Jaipur purpose, this guarantee. If I am again entering in another contract of KFC quota with KFC, this guarantee will not be applicable in that particular case. So for every, for every case, I have to get another guarantee from HDFC Bank. So इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का हो गया? देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया जो सिंगल डायरेक्शन में चलेगा. ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया जहां पर की कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट श्योरिटी जो होता है, यानी गारंटर जो होता है, वो डायरेक्ट क्रेडिटर को अफर्म करता है कि आप क्रेडिट दो. एचडीएफसी तो कह रहा है केएफसी से, आप क्रेडिट दो प्रिंसिपल डेटर को, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट हम इसको इंडेमनीफाई कर देंगे. सो देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रॉमिस द प्रॉमिस, a contract to perform the promise and to discharge the liability of third party in case of his default is what? Is guarantee, right? There are three parties. Creditor is given guarantee by the surety to pay in case of the default by the principal debtor. Now let's take a very simple example. Two persons standing on a grocery shop. Let's say I and you, है ना? And one buys on credit. You are the one, है ना, प्रिंसिपल डेटर. तुमने लिया क्रेडिट. किससे लिया? ग्रोसरी शॉप के ओनर से उधार लिया ना तुमने. द अदर प्रोमिसेस द सेलर. अब क्या हो रहा है, वो तुम उधार नहीं देना चाह रहा है ना. लेट से आई प्रोमिस्ड हिम, ही नो मी, आई प्रोमिस हिम दैट इन केस इफ ही डज नॉट पे आई विल. मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपको पैसा नहीं देता है, ये उधार जो भी ले रहा है नहीं चुकाता है, तो मैं चुकाऊंगा पैसा. इसका मतलब ये नहीं है कि आज से पहले तुमने जितना उधार लिया पैसा मैं चुकाऊंगा. ना ही इसका मतलब ये है कि इसके बाद फ्यूचर में तुमको उधार लोगे तो वो भी मैं चुकाऊंगा. इसका सिंपल सा मतलब है कि आज जो उधार ये लेता है वो पैसा मैं चुकाऊंगा. ओके, सो विद दिस नाउ आई एम क्वाइट श्योर दैट नाउ यू आर वेरी वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी. So with this, today's session is over. Thank you. See you again in another session.